मल्टीपल टॉपिक्स हैं वो हो सकते हैं. Cellular wall, when we talk about the cell wall, I think you guys must have information about the cell wall of gram-positive as well as the gram-negative bacteria, and you should be familiar with it that you should be familiar with it that the cellular wall, it have a protective role. And when we talk about the protective role, it means that cell wall will protect the cell from the osmotic pressure. Cell wall will protect the cell from different chemicals that are supposed to enter into the cell. इसके अलावा सेल वॉल शायद पैथोजेनिक अटैक से भी somehow प्रोटेक्ट कर सकती है. अब जब हम सेल वॉल की केमिस्ट्री की बात करते हैं या सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में केमिकली दैट इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राम पॉजिटिव, तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल डिफरेंट है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल डिफरेंट है. इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है ही नहीं है, तो हम इस पे बात करेंगे. इसके अलावा जो आर्की बैक्टीरिया हैं या जिनको हम बड़े कॉमनली एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसका उसकी केमिस्ट्री डिफरेंट है. वो कैसे डिफरेंट है इस पे हम चैप्टर 1 के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे. सो when we talk about the primary function of the cellular wall, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये सेल वॉल से हमने स्टार्ट करना था ना? Am I audible? जी सर. सेल वॉल से ही स्टार्ट करना था ना? सर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ Yes, रहे yes. थे, उससे नेक्स्ट. हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने फॉस्फोराइलेशन वाला पढ़ लिया था, ये लास्ट में हमने पढ़ लिया था जिसमें मैंने ग्लूकोज कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बताया था. So जी सर. so I suppose we have to start with the cellular wall. So when we talk about the primary functions of the cellular wall, it may include the rigid structure. It may be considered a rigid structure because that is made up of peptidoglycan and some other rigid molecules that may be present in it. तो हम cellular wall को एक rigid structure consider करते हैं. As comparison, जब हम देखते हैं cellular membrane को, we do not consider the cellular membrane as a rigid structure, क्योंकि हमने वहाँ पे बात की थी कि cellular membrane is considered as thin and flexible, but the cellular wall that is considered as a rigid. अब चूंकि ये rigid है, it would be enable or it would have its role in the determination of the shape of the organism. It would actually determine what kind of an organism will look like. फॉर एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ी शेप्स, वहाँ पे हमने स्फेरिकल शेप्स पढ़ी, वहाँ पे हमने रॉड शेप यानी बैसिलस पढ़ी, और फिर हमने एक ऐसा बैक्टीरिया पढ़ा जिसकी सेल वॉल नहीं थी, माइकोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा, और उसके लिए हमने टर्म यूज़ की प्लियोमॉर्फिक. तो इसका मतलब क्या है कि द बैक्टीरिया विच हैव द सेलुलर वॉल दे मस्ट बी ऑफ डिस्टिंक्ट शेप. If the cellular wall is absent, then there may be the irregular shape. So the cellular wall there is a rigid structure. It would help the bacteria to determine its shape. इसके साथ साथ एक और important point इसका ये है कि cell wall जो है it would help the cell to hold it together. Cell को burst करने से रोकती है, क्योंकि हमने cellular membrane की टॉपिक में पढ़ा था कि when water enters into the cellular water enters into the cytoplasm, it may exert the osmotic pressure on the cellular membrane, और इस osmotic pressure की वजह से cellular membrane और the cell may burst. But when we talk about cellular wall because that is a rigid, it would prevent the cell from bursting, or you can say that it is a protective barrier which would prevent the cell from osmotic pressure. So these are a few primary functions that a cellular wall may perform, and that a cell may get advantages of the cellular wall of. यहाँ पे इस स्लाइड पे there is a comparison between the cellular wall of the gram positive and gram negative bacteria. जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें.
एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर के स्टार्ट में भी थोड़ी सी बात हुई थी। जब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की कंपैरिजन की बात करते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं ये हमें पर्पल नजर आते हैं और जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं दे लुक पिंकिश। ये हमने ग्राम स्टेनिंग में डिटेल के साथ पढ़ा कि क्यों ग्राम नेगेटिव पिंक नजर आते हैं और क्यों ग्राम पॉजिटिव पर्पल नजर आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव जेनरा की बात करें फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो इसमें हमारे पास बैसिलस दैट वुड बी द ग्राम पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकस जीनस, ये जीनस का नाम है, स्टेप्टोकोकस दैट वुड आल्सो बी ग्राम पॉजिटिव। इसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो स्कर्शिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, स्कर्शिया जीनस के जितने भी मेंबर्स हैं दे वुड बी ग्राम नेगेटिव। तो हमने स्कर्शिया कोलाई इकोलाई को बार बार पढ़ा है तो इसका मतलब है इकोलाई दैट वुड आल्सो बी ग्राम नेगेटिव। इसके अलावा निजेरिया दैट इज इन्वॉल्व इन द डिजीज ऑफ द जेनिटल्स दैट इज आल्सो ग्राम नेगेटिव। Pseudomonas is also gram negative. So these are some representative genera from the gram positive as well as gram negative class, and you should memorize some examples that what are the representative genera that are in the gram positive class and that are in the gram negative class. So if we move next, when we compare the structural components of the gram positive and gram negative cell wall, we can compare the peptidoglycan. यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट पे देखते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट है peptidoglycan. Please keep in mind the layer of the peptidoglycan that is very thick in case of the gram positive, but this layer is very thin in the case of the gram negative. Here I can show the layer of the peptidoglycan in this picture. अगर आप इस पिक्चर पे बात करते हैं तो ये जो येलो लेयर है, this येलो नहीं, this blue layer, this blue layer is actually depicting the thick layer of the peptidoglycan. और अगर आप कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव में देखते हैं तो ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिन है. सो दिस इज द डिफरेंस. इसके साथ साथ टेकोइक एसिड. Teichoic acid is an other component that may be present in the gram positive, but that teichoic acid is absent in the gram negative. ठीक है. इसके साथ साथ if we talk about some outer membrane, तो एक other component है, एक some other layer है जिसको हम outer membrane के तौर पे consider करते हैं. यहाँ पे अगर आप इस picture में देखें तो ये जो yellowish या orangish layer नजर आ रही है, this is considered as outer membrane, and this outer membrane is only present in the gram negative cells. This is absent in the gram positive. आप अगर इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है, this outer layer that is made up of, this outer layer is made up of lipopolysaccharide. अब अगर आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है ग्राम पॉजिटिव में तो डेफिनेटली इसमें लिपोपोलीसैकेराइड भी एब्सेंट होगा, और अगर आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ग्राम नेगेटिव में तो इसमें लिपोपोलीसैकेराइड प्रेजेंट होगा. अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये बहुत थिक है और ये फुल्ली परमिएबल है. फुल्ली परमिएबल, आई एम यूजिंग द वर्ड फुल्ली परमिएबल. जब हम सेलुलर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो दैट इज सेमी परमिएबल. ये पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर की हम बात करेंगे, दिस इज फुली परमिएबल. अच्छा, अब ये फुली परमिएबल है. इसके साथ साथ कुछ पोरिन प्रोटीन्स हैं. देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर एक्टिंग लाइक स्पेशल गेट्स. अब जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर फुली परमिएबल है इसलिए इसमें तो चैनल्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो परमिएबल है, ये तो हर मॉलिक्यूल को पास थ्रू करेगी. इसलिए पोरिन प्रोटीन्स या जो स्पेशल गेट्स हैं दे आर एब्सेंट इन द ग्राम पॉजिटिव. बट द आउटर मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव, दिस इज नॉट परमिएबल. सो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को पास करना है आउटर मेम्ब्रेन से तो there should be some special channels which are called porin protein. So porin protein would be present, definitely that will be present in the gram negative.
इसके साथ साथ एक्सक्यूज मी, इसके साथ साथ एक और स्पेस की बात होगी यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड पेरिप्लाज्म. Periplasm is absent in gram positive, but the periplasm, there is a space which is present in the gram negative. Now, the question is that, what is periplasm? If you look into this image, the periplasm is labeled here. You can say that the periplasm is the portion between the cytoplasmic membrane and the peptidoglycan layer and the outer membrane. This is the periplasm, and periplasm is present in the gram negative, but the periplasm is absent in the gram positive. Okay, up to this point, if you guys have any question, you may ask. Okay, no questions. So we move next. मजीद अगर इस कंपैरिजन को हम थोड़ा सा देखते हैं तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ हम अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास कैरेक्टर आता है, द सेंसिटिविटी टू द पेनिसिलिन. अब यहाँ पे जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स रिपोर्ट हो चुकी हैं. एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द compounds which are protein in nature and that has ability to kill different bacteria. एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं? कुछ फंजाई हैं, कुछ फंगस हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करते हैं. और कुछ ये जो स्पीशीज एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती हैं, ये अदर स्पीशीज को, अपने एनिमीज को या अपने कंपिटिटर्स को किल करने के लिए इन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, इन एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शंस हैं. मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक विल एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, और कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देंगे जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. कुछ एंटीबायोटिक्स आरएनए के साथ या राइबोसोम्स के साथ अटैच होंगी और प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन कर देंगी. कुछ एंटीबायोटिक्स सेल के अंदर एंटर होंगी और जो सेल वॉल बन रही है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर बन रही है, उसको नहीं बनने देंगी. अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. अब पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर होने वाली एंटीबायोटिक है. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1928. Now the mode of action of penicillin is to attach itself or to disrupt the formation of the peptidoglycan layer. तो यहाँ पे बात होगी सेंसिटिविटी टू द पेनिसिलिन की. अब चूंकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिक है और ग्राम पॉजिटिव के बाहर कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम एक्सपोज करेंगे पेनिसिलिन के साथ, तो पेनिसिलिन एंटर हो जाएगी सेल के अंदर और जो न्यू पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बन रही होगी उनको बनने नहीं देगी, एंड बैक्टीरिया वुड डाई अल्टीमेटली. सो हम कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे वुड बी सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन. अब आते हैं ग्राम नेगेटिव पे. ग्राम नेगेटिव पे पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर तो मौजूद है और उस लेयर के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद है. और मैंने अभी आपको बताया था कुछ मिनट पहले कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट परमिएबल, दिस वुड नॉट अलाउ टू पास थ्रू द पेनिसिलिन. सो इफ इट वुड नॉट अलाउ टू पास थ्रू द पेनिसिलिन इनटू द सेल, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? द सेल वुड बी रेजिस्टेंट टू द पेनिसिलिन. सेल पे, यानी कि ग्राम नेगेटिव सेल पे पेनिसिलिन की एब्सेंस या प्रेजेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. बट एज कंपैरिजन इफ वी लुक इनटू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन. they would be destroyed, they would be killed if we have applied the penicillin. Okay, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डॉक्टर पेनिसिलिन सजेस्ट करता है किसी पेशेंट को, तो पेनिसिलिन सिर्फ उसी पेशेंट को सजेस्ट की जा सकती है जिसको इन्फेक्शन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से. अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव से, that will not be addressed with the penicillin. इसके साथ साथ एक और एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल डिसरप्शन के लिए. दिस इज lysozyme, and this is important to break down the cell, and lysozyme is present in the human tears
अदर ह्यूमन सिक्रीशंस में होता है, टीयर्स हैं, स्लाइवा है। तो gram positive bacteria are also sensitive to the lysozymes. This is an enzyme. But the gram negative bacteria, they are also, they are again insensitive or resistant to the gram negative. So this was a brief comparison. अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन का एक टेबल था जो कि यहाँ पे डिस्कस करना मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट होगा. If you guys have any question, एक मिनट. If you guys have any question up to this point, you may ask. Yes, अब पूछें. सर कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरियल जेनेटिक मशीनरी को अटैक करती हैं और कुछ उनकी प्रोटीन की जो कोटिंग होती है उनको, तो ये एफिनिटी क्या चीज डिटरमिन करती है एंटीबायोटिक्स में? ओके. हमने एक चैप्टर पढ़ना है एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी, चैप्टर नंबर 23 है प्रेस्कॉट की बुक का. उस बुक के अंदर हमने डिटेल में ये मैकेनिज्म डिस्कस करने हैं. मैं इस क्वेश्चन को वहाँ के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर. जैसे अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन इन नेचर. दे हैव अफिनिटी टू बाइंड विद सम टारगेट मॉलिक्यूल्स. Some of them they have ability to bind with the enzymes which are responsible for the protein translation in the ribosome. अगर कोई प्रोटीन राइबोसोम में प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के साथ बाइंड कर गई है तो प्रोटीन ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी और अल्टीमेटली हम कहेंगे कि एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को हॉल्ट कर दिया. इसी तरह से इफ देयर इज एन एंटीबायोटिक व्हिच हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द peptidoglycan which have ability to inhibit the synthesis of peptidoglycan. तो इसमें अगर मैं आपको आगे दिखा सकूं तो पेप्टिडोग्लाइकन की केमिस्ट्री हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसमें एंटीबायोटिक की जो लेयर है वो ग्लाइकन चेन ग्लाइकन चेन के साथ जाके अटैच करेगी यहाँ पे, और पेप्टिडोग्लाइकन की जो मल्टीपल लेयर्स हैं ये नहीं बनेंगी. सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स. And I am happy that you have asked the question, but I will leave the answer in detail and I will answer you in detail in the chapter number 23. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो मैंने बताया. Got it? Is that clear? Yes, sir. नहीं, आपसे नहीं पूछा, जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन उनसे पूछा है. ओके, अच्छा राफिया ने भी हैंड रेज किया था. यस राफिया कमल, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? सर जी पूछें. सर मैंने पूछना था लाइसोजाइम का, जिस तरह आपने पेनिसिलिन का बताया है कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो उससे सेंसिटिव है, तो इस तरह लाइसोजाइम से भी सेंसिटिव है. तो इसके भी क्या यही रीजन है कि इसके जो पेप्टिडोग्लाइकन है क्योंकि वो परमिएबल है फुली, तो इस वजह से वो एंटर हो सकता है, या कोई डिग्रेडेशन का सिस्टम है कि पेप्टिडोग्लाइकन को ये डिग्रेड कर सकता है लाइसोजाइम? तो सर ये बता दें. Yes, you are right. This is the basic reason that the gram-negative bacteria, they have an outer membrane or the protective, you may say the protective membrane for the gram-negative. And this is because this is not permeable, so this is not allowing any unwanted or chemical or the compound to pass through it. Because I told you that there are some porin protein, the special gates which are present in the outer membrane. वो जो special gates हैं, they are dedicated for the passage of some specific organisms. So the lysozyme, this would be inhibited at start. This would not be allowed to enter into the organism. यही इसका basic mechanism होगा इससे protection का. Okay, sir. Okay, good. It was a good question. Any other question? Question पूछते हुए hesitate ना किया करें, क्योंकि जब मैं question पूछता हूँ तो मैं भी बिल्कुल hesitate नहीं करता आपसे. Any questions? Good. There is no question, so we would move next. So यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे पेप्टिडोग्लाइकन के. So peptidoglycan, that is considered as a macromolecule, and this is a macromolecule just like the macromolecules as we consider the polysaccharides and the lipids. So this is a macromolecule which is found in the bacteria. This peptidoglycan is not present in the eukaryotes. This is found in the bacteria. And what is it made up of?
It is made up of two parts. One part is the glycan chain, and number two, that is the tetrapeptides. ये बात स्लाइड पे नहीं लिखी हुई है, अपने पास नोट्स में नोट कर लीजिएगा. Peptidoglycan is made up of two parts. One is the glycan chain, and number two is the tetrapeptide. This glycan chain, अब अगर glycan chain की बात करते हैं, this glycan chain have two kind of subunits. एक सब यूनिट उसके अंदर होता है N-acetyl-muramic acid या NAM कहते हैं, और दूसरा सब यूनिट है N-acetyl-glucosamine या NAG कहते हैं उसको. हम बात कर रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन की. पेप्टिडोग्लाइकन के दो सब यूनिट्स, एक ग्लाइकन चेन और एक टेट्रापेप्टाइड. हम अब बात कर रहे हैं ग्लाइकन चेन की. ग्लाइकन चेन इज मेड अप ऑफ टू अल्टरनेटिंग सब यूनिट्स. एक है N-acetyl-muramic acid और दूसरा है N-acetyl-glucosamine. दोनों ऑल्टरनेटिंगली प्रेजेंट होते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले NAG है, फिर NAM है, फिर NAG है. सो दिस इज द ग्लाइकन चेन, और हम इन सब यूनिट्स की इस अरेंजमेंट को कहेंगे दिस इज द ऑल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ टू सब यूनिट्स. अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिस इज फॉर द NAM एंड दिस इज फॉर द NAG. So this was about the glycan chain of the peptidoglycan. दूसरा मैंने उसका पार्ट बताया था the tetrapeptide. अब अगर tetrapeptide है तो इसका मतलब है कि ये अमीनो एसिड्स होंगे. तो tetrapeptide में हमारे पास जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं they are the aminopamelic acid. This is a unique amino acid which is not present normally in the proteins, and this is like the lysine. इसके साथ साथ इस टेट्रापेप्टाइड में जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द डी आइसोमेरिक फॉर्म. हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि दे आर टू फॉर्म्स, दे आर टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. एक होती है डी फॉर्म, एक होती है एल फॉर्म, यानी कि डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी. नॉर्मली व्हेन द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द नेचर और इन द प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन द एल फॉर्म, बट द अमीनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेप्टिडोग्लाइकन this is present in the D form. अब अगर आप यहां पे देखते हैं ये एक ग्लाइकन चेन है ऊपर, उसके साथ ये टेट्रापेप्टाइड्स हैं. जब हम टेट्रापेप्टाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि there are 4 amino acids. So these are the tetrapeptides 1, 2, 3 and 4. Okay, tetrapeptides. So दो ग्लाइकन चेन्स, एक ये वाली, ये ग्लाइकन चेन एक है और दूसरी ये ग्लाइकन चेन. ग्लाइकन चेन दे वुड बी बाउंड विद वन एंड ईच अदर थ्रू दिस लिंकेज. अब लिंकेज कैसे है कि दो टेट्रापेप्टाइड्स हैं हमारे पास, एक इस चेन का है और एक इस चेन का है. दोनों टेट्रापेप्टाइड आपस में बाइंड किए हुए होंगे एक ब्रिज से, एंड दिस ब्रिज वुड बी कॉल्ड पेप्टाइड इंटरब्रिज. पेप्टाइड इंटरब्रिज. There are two tetrapeptides from alternating chains, alternating glycan chains, and they have attached with one and each other through the interbridge. This is called peptide interbridge. अब इस तरह की ग्लाइकन चेन की जो लेयर्स हैं ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी तरह से ये एक के ऊपर एक लेयर है. जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आपको 6 लेयर्स नजर आ रही हैं. अब चूंकि हमने पीछे पढ़ा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है दैट इज वेरी थिक, तो ये याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की इस तरह की 30 लेयर्स होती हैं. ये एक लेयर है, ये 2 लेयर है, ये थर्ड है, दिस इज द फोर्थ, फिफ्थ. इस तरह की 30 लेयर्स हैं ग्राम पॉजिटिव में. इसी वजह से ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट होती है. सो दिस वाज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन. अब एक बात यहाँ पे एक और डिफरेंस है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का. ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि टू टेट्रापेप्टाइड्स दे आर अटैच्ड विद वन एंड ईच अदर थ्रू अ ब्रिज व्हिच इज कॉल्ड पेप्टाइड इंटरब्रिज. This bridge is only present in the gram positive cells.
this bridge would be absent in the gram negative. ग्राम नेगेटिव में क्या होगा कि ये पेप्टाइड डायरेक्टली ऐसे अटैच हुए होंगे, डायरेक्टली इसके साथ ये अटैच होगा. देयर वुड नॉट बी द ब्रिज. यहाँ पे लिखा होगा इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द टेट्रापेप्टाइड्स आर ज्वाइंट डायरेक्टली. लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये थ्रू इंटर ब्रिज के अटैच होंगे. दिस वाज an other difference between the gram positive and gram negative cell wall. So up to this point, if you guys have any question, you may ask. इस पॉइंट पर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हो. Yes, Rafia has raised a hand. जी सर इस इंटरब्रिज से इनकी कोई केमिस्ट्री पे मतलब किस तरह से इफेक्ट करता है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन? Rafia, this is also this is again a good question. This would be explained in the further slides. ओके सर. Nice. It is a nice question. Okay, आगे चलते हैं जी. अभी बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की. ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बार बार बात की है अभी पिछले 10-15 मिनट्स में हमने कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है दिस इज अ थिक लेयर, और पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर है. इसमें 30 लेयर्स हो सकती हैं या शीट्स हो सकती हैं विच आर ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लाइकन. और ये बात आपको अब क्लियर होनी चाहिए कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है दिस इज फुली परमिएबल, और इसकी जो परमिएबिलिटी है ये अलाउ करती है द पैसेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एटसेट्रा को पास थ्रू करने के लिए. अब अगर आप याद करें तो जब मैंने एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन आपसे किया था वहाँ मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स आर प्रोटीन इन नेचर और ये बड़ी इजीली पास कर जाएंगे पेप्टिडोग्लाइकन से. तो ये बात उसकी जस्टिफिकेशन आ गई है कि पेप्टिडोग्लाइकन अमाइनो एसिड्स और शुगर को अलाउ करता है. तो चूंकि एंटीबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड some polysaccharides, so they would easily be allowed to pass through the layer of the peptidoglycan. इसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव सेल्स में हमारे पास टिकोइक एसिड होता है, हमने टेबल में भी देखा. चेन ऑफ रिबोटोल फॉस्फेट्स या ग्लिसरॉल फॉस्फेट दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल. अब ये जो टिकोइक एसिड है हाउ दिस इज प्रेजेंट, क्वेश्चन ये है. सो दिस टिकोइक एसिड दैट विल बी प्रेजेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद द एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड. अगर आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा सकूं, ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम में थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा. ये नीचे लिपिड बाइलेयर है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, ये लिपिड बाइलेयर है. ये नीचे जो है दिस वन, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, दिस वन, ठीक है. इसके अंदर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं. उसके ऊपर ये साइड पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, उसके अंदर NAG, NAM डिफरेंट हमारे पास अल्टरनेटिंग सब यूनिट्स हम अभी पढ़ के आए हैं. अब उसमें ये टिकोइक एसिड है. दिस इज प्रेजेंट in the form of the covalent bond, and this is attached with the acetyl muramic acid unit. ठीक है. So this is like here, the टिकोइक एसिड covalent bond के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसके साथ साथ there is another unit which is considered as the lipoticoic acid. Now this lipoticoic acid that has the negative charge, और इस लिपोटिकोइक एसिड की वजह से ही इस लिपोटिकोइक एसिड की वजह से ही we consider it that the cellular charge, the cellular polarity is negative. ये हमने चैप्टर 1 में बात की थी कि the charge on the bacteria that is normally considered as negative. So this is one of the reason that why there is a negative polarity on the gram positive cell. This is due to that presence of the lipoticoic acid, because that has a negative charge. So that's why it would give the negative polarity to the gram positive or the other bacteria which are having the lipoticoic acid. Okay, this was it. This is a structure that I have explained to you. The next one, that is about the gram negative cell wall.
So here I would use the term that the gram-negative cell wall, this is a far more complicated. अभी हमने ग्राम पॉजिटिव पढ़ी है, बड़ी सिंपल थी और उसके अंदर दो ही चीजें थी, पेप्टिडोग्लाइकन में ग्लाइकन और पेप्टाइड. But the gram-negative cell wall, this is considered as far more complicated. इसमें important जो बात हम पहले पढ़ के आए हैं वो ये है कि पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर एक थिन लेयर है, थिन लेयर. और इसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव में एक आउटर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है. अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज मेड अप ऑफ अ यूनिक लिपिड बाइलेयर. जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, so there is an outer membrane in the gram-negative cell wall, and this outer membrane is made up of a unique lipid bilayer. अब ये uniqueness क्या है, इस पे बात करते हैं आगे. एक बात तो तय है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है ये बिल्कुल उसी तरह से है ग्राम पॉजिटिव की तरह. जो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस या वेरिएशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली थी. अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन की. एंड हियर आई हैव टोल्ड यू दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ यूनिक लिपिड बाइलेयर. तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस वुड एक्ट एज अ बैरियर एंड इट वुड be acting like a protective barrier because it would not allow to pass the unwanted molecules. There are some special gates or the structures inside the outer membrane, and these are called porins. Okay? Porins. And these porins, they would allow only the specific substances to pass through it. इसके साथ साथ अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल लिपिड बाइलेयर एंड व्हिच इज टर्म्ड एज अ लिपोपोलीसैकेराइड. अगेन इसके साथ साथ लिपोपोलीसैकेराइड. अब हम जब याद करें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात की थी पिछले टॉपिक में, तो उसमें हमने देखा था कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है. लेकिन ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड्स नहीं है, इसमें लिपोपोलीसैकेराइड है. आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, ये वाली. अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो इसमें सबसे नीचे ये वाली लिपिड बाइलेयर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की. इसके अंदर वैसे वो प्रोटीन एम्बेडेड है जो कि हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है यहाँ पे, दिस इज वेरी थिन लेयर. और इस लेयर के बाद ये ऊपर, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये सारी की सारी आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस वन. अब इस आउटर मेम्ब्रेन को अगर आप देखते हैं तो इसमें ये वाला नीचे पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस इज द लिपिड पोर्शन, लिपिड बाइलेयर. ठीक है, ये वाली लिपिड लेयर है. ये वाली ये लिपिड लेयर सिमिलर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी. ऊपर इसके जो दूसरी लेयर है, दिस इज मेड अप ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड. इसके साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं. ये पोरिन प्रोटीन्स हैं. दिस वन, दीज आर द पोरिन प्रोटीन्स which are acting there like special gates. If we talk about the structure of the lipopolysaccharide, तो lipopolysaccharide के structure के 3 portions होते हैं. One is the lipid A. This is the lipid A. Actually lipid A ये वो structure है जो कि outer membrane को anchor करता है इस लिपिड की लेयर के साथ, इसके साथ. उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड, कोर पॉलीसैकेराइड, और उसके बाद आता है ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड. ये जो ओ स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड है, this would be different in different species. This would be variable in length and the composition. So this is the structure which is different in different species. तो यहां तक हमने अभी देखा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर और ऊपर आउटर मेम्ब्रेन. अगर आप इस पिक्चर को कुछ इस तरह से देखें, दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन एंड द
आउटर मेम्ब्रेन, लिपोपॉलीसेकेराइड। यहां तक कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, ये जो ओ स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड है, ये मतलब आपने कहा ना डिफरेंट होते हैं, तो सर इसके डिफरेंस की कोई खास वजह या फिर इसका फंक्शन क्या है इसके स्ट्रक्चर में? हाँ, ये जो ओ स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड है, दे मे बी वेरी इन द लेंथ एंड द कंपोजिशन, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाते हैं स्पीशी टू स्पीशी। Whenever they enter into the human body, they have ability to activate the human immune system. Human immune system will identify these O-specific polysaccharides and will generate the antibodies against them. यानी कि ये O-specific polysaccharides एंटीजन के तौर पे भी काम करेंगे, जिनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इनको आइडेंटिफाई करके इनके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। सो यू कैन से दैट these are the portions of the bacteria which act as an antigens. So इस वजह से ये स्पेसिफिक है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स की थोड़ी सी डिटेल आएगी इस पे, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड में हमने पढ़े हैं 3 पोर्शन, एक है लिपिड ए और दूसरा दरमियान में कोर पॉलीसेकेराइड था, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दिस इज ओ स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड। तो लिपिड ए क्या करता है, एज आई हैव टोल्ड यू, दिस एंकर्स द लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल इन द लिपिड बाइलेयर, एंड केमिकल मेकअप अगर आप इसका देखते हैं तो it has ability, or the body has ability to recognize the presence of the invading bacteria. इसके बाद अगर हम O specific polysaccharides पे चलते हैं, तो this is made up of chain of sugar molecules, क्योंकि ये polysaccharide है, and it may varies among different species. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है जिसका जीनस इस्कर्शिया है, स्पीशी कोलाए है, लेकिन आगे O157:H7 here this is mentioned. एक्चुअली में हमने चैप्टर 1 में बात की थी स्ट्रेन की, कि हाउ दैट स्ट्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट चेंजेस की वजह से हम स्ट्रेन के नाम के साथ कोड्स ऐड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोड है, दिस इज शोइंग दैट कि ये है तो इकोलाई, बट दिस इज नॉट द वाइल्ड टाइप इकोलाई, दिस इज द इकोलाई which have the O-specific polysaccharide of 157th type. Actually, on the basis of this O-specific polysaccharide, we are determining, or we are identifying the strain. We are identifying the strain on the basis of these compositions. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने वहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर कोई जेनेटिक वेरिएशन या कोई जीन हम इंसर्ट कर दें इकोलाई में, तो भी इकोलाई जो है वो वाइल्ड टाइप नहीं रहेगा, तो हम आगे कोड लिखेंगे कि ये है तो इकोलाई लेकिन इसमें ये वाली जीन इंसर्टेड है। बिल्कुल उसी तरह से ये है तो इकोलाई लेकिन इसमें स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस कुड बी द रोल ऑफ स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड कि हम उसकी बेस पे डिटर्मिनेशन या आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। दिस वाज अबाउट द पॉलीसेकेराइड। इसको 2 मिनट देखें। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।